Hello students, so in this lecture we will study refraction of light through a glass prism and also we will see how to calculate the angle of deviation. Okay, so it is a very important topic for 10th board examination as well as for the competition examination. Okay, so let's start this lecture. So let's first see a definition of a glass prism. So a glass prism is a transparent object having two triangular ends and three rectangular sides. Okay, so you can see in this diagram these two faces, this face f1 and this face f2. Okay, these two faces are rectangular in shape. Okay, इनका shape कैसा है, rectangular shape का है. Okay, so one rectangular is in at the bottom. Okay, so one rectangular side is at the bottom. So from these three rectangular sides, only these two rectangular sides worked as a refracting surfaces. जो refraction होता है वो only जो ये faces है f1 and f2, these two sides, from these two sides only refraction will take place. Also in a glass prism there is two triangular sides. So two triangular sides is at this front side and at the back side. Okay, दो triangular side भी होती हैं, एक ये front side में and one triangular side is at the back. Okay, so when we represent a glass prism, we represent a glass prism by this triangular side. इस ये जो triangular side होती है इससे हम glass prism को represent करते हैं. So here PQR is a glass prism. Now let's see a prism angle. So this angle A is a prism angle. Okay, now what is this, how you define this angle? So the angle between its two lateral faces is called the angle of the prism or the prism angle. तो प्रिज्म एंगल होता क्या है कि ये जो दो रेक्टेंगुलर साइड्स है जो कि एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस वर्क करती हैं. ओके, F1 एंड F2 जो साइड्स हैं, रेक्टेंगुलर साइड्स हैं, दीज टू साइड्स वर्क एज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ अ प्रिज्म. इनके बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल. ओके, समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी हाउ अ रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस थ्रू अ glass prism. So first we'll take a glass prism. So this is a glass prism PQR and the angle between the two refracting surfaces of a prism is A and this is called prism angle. So A यहाँ पर हमारा क्या है, prism angle है. So let's take first this refracting surface PQ and on this refracting surface let's draw a normal at a point of incidence. किसी point of incidence पर हमने एक normal draw किया. Okay, now this JK is a incident ray. JK क्या है, incident ray. Now this incident ray is making an angle I with a normal, so this I is called incident angle. Okay, now as you can see that this light ray is traveling from rarer medium to denser medium. Now when a light ray travels from rarer medium to denser medium, after refraction it will bends towards the normal. Refraction के बाद वो क्या होते हैं, it bends towards the normal. Okay, now see angle R1. So this R1 is a refracting angle. R1 क्या होगा यहाँ पर, refracting angle होगा क्योंकि ये जो refracted ray है ये refracted ray normal के साथ कितना एंगल बना रही है, R1. So this thing happens on this face PQ पर इस तरह से light ray का क्या होगा, refraction होगा. Now this refracting ray will travel and reach the other side or at the other face of a prism. प्रिज्म का जो दूसरा फेस है, रिफ्रैक्टिंग फेस है, वहाँ पर ही लाइट रे ट्रेवल करेगी और यहाँ पर पहुँच जाएगी. अब यहाँ पर क्या होगा, ऑन दिस फेस व्हाट हैपेंस, लेट्स टेक दिस L इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, कौन से फेस पर, ये PR पर. ठीक है, और यहाँ पर वी ड्रॉ अ, ओके, सो वी ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी ड्रॉ अ नॉर्मल. सो दिस इज अ नॉर्मल. नाउ दिस लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. Now when a light ray travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. जब लाइट रे क्या करती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर की तरफ जो है वो बेंड हो जाएगी. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. So you can see here this. Now this KL is a incident ray for this face PR. जो PR फेस है प्रिज्म का, उस फेस के लिए जो KL है वो क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी. ओके, और ये क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर की तरफ बेंड हो जाएगी. इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सो LM इज कॉल्ड इमरजेंट रे. LM को हम क्या बोलेंगे, LM इज अ
emergent ray. Now this emergent ray is making an angle E with the normal, so this is called emergent angle. Okay, also this ray KL, this KL is making angle R2 with the normal, so this KL is a incident ray at the face PR. PR पर ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो ये R2 क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल. R2 is a incident angle at the face PR. Okay, now this is a process by which in this way the refraction of a light through a glass prism take place. Now we can notice some important points from this refraction. First point is that the emergent ray is bends towards the thicker part of a glass prism. इसमें आप देख रहे हैं जो emergent ray हो रही है, this emergent ray is bent towards the thicker part of a glass prism. तो ये एक noticeable point है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है तो जो इमर्जेंट रे है वो इमर्जेंट रे किस तरफ बेंड होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ अ ग्लास प्रिज्म. ओके, नाउ वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. तो ग्लास स्लैब के केस में क्या होता था, इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे थी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, ग्लास स्लैब के केस में इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट व्हेन द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म टेक प्लेस द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. आप देख भी सकते हैं जेके हमारी इंसिडेंट रे है, एलएम जो है वो क्या इमर्जेंट रे है. जेके एंड एलएम आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ओके, so why it happens? It happens because in case of glass slab the glass slab thickness is uniform. ग्लास स्लैब जो थी उसकी जो थिकनेस है वो क्या थी, यूनिफॉर्म थी, इसलिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर आप प्रिज्म में टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो थिकनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. थिकनेस जो है वो वेरिएबल है. ओके, तो थिकनेस वेरिएबल होने की वजह से, okay, because in case of a glass prism the thickness is variable so that the incident ray is not parallel to the emergent ray. Okay, now let's define one more important parameter here, and this is called angle of deviation. Angle of deviation we denote by delta. Angle of deviation को किससे denote करते हैं, delta से. Angle of deviation होता क्या है, angle of deviation is a angle between the incident ray and the emergent ray. Okay, you can see that here this is the path of incident ray. Okay, this is a path of incident ray and this is a path of a emergent ray. Okay, so the angle in between is delta. So again I am repeating it. What is the angle of deviation? Angle of deviation is a angle between the incident ray and the emergent ray. इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का जो बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, नाउ लेट्स move to next slide. So here you can see that JK is what, incident ray of light. Okay, JK क्या था हमारा, incident ray था. Now KL is refracted ray of light, LM is emergent ray of light, angle A is prism angle, angle I is incident angle at face PQ. ठीक है, angle R1 is refracted angle at face PQ, angle R2 is incident angle at face PR, and angle E is emergent angle at face PR. Okay, so ये सारी टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी. Okay, now let's define angle of deviation. So what is angle of deviation? The angle between incident ray and emergent ray is called angle of deviation. Incident ray और emergent ray के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं angle of deviation. Now let's see how we derived a formula for the angle of deviation. सो सिंपल टिक्नोमेट्री आपको इसमें अप्लाई करनी है, देखते हैं इसमें. नाउ यू कैन सी हियर पी के एन एल पी. ठीक है, सो पी के एन एल पी इज अ क्वाड्रिलेटरल. सो फॉर अ क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर अपन एंगल देखते हैं. दिस एंगल इज ए. ओके, दिस एंगल इज हाउ मच, ए. नाउ दिस इज अ नॉर्मल एट दिस सरफेस पी क्यू. पी क्यू जो सरफेस है हमारी, पी क्यू सरफेस पर ये क्या है, नॉर्मल है. तो इस वजह से जो एंगल के होगा हमारा, वो एंगल के कितना होगा, 90 डिग्री. ओके, एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं. ये जो एंगल है यहाँ पर, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली दिस एंगल, क्योंकि ये जो रे नॉर्मल है, दिस इज अ नॉर्मल. ओके, एट दिस सरफेस पी आर. सो दिस एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री. दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो ए
plus 90 plus alpha plus 90. Okay, it is equal to 360 degree. तो इसको सॉल्व करेंगे हम, we will get a is equal to 180 minus alpha. एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी a is equal to 180 minus alpha. Okay, now let's see a triangle here KNL. KNL आपको ट्राइंगल दिख रहा है. इस ट्राइंगल में this angle is R1, this angle is alpha and this angle is R2. So sum of all these three angles in a triangle is equal to 180 degree. Okay, must be equal to 180 degree. So here we write R1 plus R2 plus alpha is equal to 180. Now this R1 plus R2 is equal to 180 minus alpha. Okay, ये relation आ जाएगा आपके पास. Now let's take another triangle. So this triangle is KLO. You can see here KLO. Now in this KLO, if you want to find out this angle, so this whole line from here to here is 180 degree. So if you subtract delta, which is an exterior angle, so if you subtract this delta, you will get this KOL is equal to 180 minus delta. यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 180 minus delta. ठीक है, एक एंगल तो आ जाएगा आपके पास 180 minus delta. यहाँ पर आप देखें second as you can see that this complete is I. This complete angle is how much? I. This complete angle is how much? I. This angle is I, so that this angle is I. So if you subtract R1, you will get this angle. Okay, you will get this angle. Okay, so how much you will get this angle? So this complete angle is how much? I. So you subtract R1, so here you will get I minus R1. So you will get I minus R1. Okay, now see here this side. So this complete angle is how much? E. This complete angle is E. Now subtract R2. Here you will get E minus R2. Now sum of all these angles must be equal to 180 degree. So arrange it. I plus E minus delta is minus R1 plus R2 is equal to 0. So here you will get I plus E minus delta is equal to R1 plus R2. Now this R1 plus R2 is equal to 180 minus alpha. So put here 180 minus alpha. Now this 180 minus alpha is equal to A. So put here A. So this is a very important formula you will get. Delta is equal to I plus E minus A. ठीक है, सो दिस डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, जो हमें मिलता है, वो क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. नाउ हियर विल कैलकुलेट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, we have a condition. Okay, so what is the condition? This I must be equal to E. Okay, the incident angle equal to emergent angle. Also the R1 is equal to R2. R1 क्या था हमारा? जो PQ फेस था, PQ फेस पर जो रिफ्रेक्टेड एंगल था वो क्या था? R1. ओके, और इस तरह से R2 क्या था? R2 जो है वो इंसिडेंट एंगल था PR फेस पर. तो R1 इज इक्वल टू R2 होना चाहिए और I इज इक्वल टू E होना चाहिए फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. एक बार और रिपीट कर देते हैं. मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो I है, I मस्ट बी इक्वल टू E, यानी कि इंसिडेंट एंगल इमरजेंट एंगल के बराबर होना चाहिए. ऑल्सो द R1 इज इक्वल टू R2. R1 क्या होता है हमारा? रिफ्रेक्टेड एंगल फ्रॉम एट द फेस PQ, और R2 जो है वो क्या है? इंसिडेंट एंगल एट द फेस PR. Now we have a formula delta is equal to I plus E minus A. Put here I is equal to E. You will get, put E is equal to I. Okay, so you will get 2I minus A. So here you will get for the, अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए आपको, उसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए अपना, उसका जो फॉर्मूला होता है I is equal to 1/2 डेल्टा मिनिमम प्लस E. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं. आप आगे फर्दर जो हायर क्लासेज है वहाँ भी स्टडी करेंगे, प्लस NTSC ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें ये फॉर्मूलेज भी यूज़ होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में. ओके, तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए तो उसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए? I इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा मिनिमम प्लस A. ओके, नाउ पुट अ सेकंड केस. सेकंड केस हमारे पास क्या है? R1 इज इक्वल टू R2. ओके, तो ये रिलेशन अभी लास्ट जो डेरिवेशन है हमारे पास, यू कैन सी फ्रॉम हियर.
यू कैन सी हियर R1 प्लस R2 और 180 माइनस एल्फा अगर आप A पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ठीक है, तो ये रिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये रिलेशन इधर यूज़ कर रहे हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R2 इज इक्वल टू R1 जो हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन है। सो हियर यू विल गेट R1 इज इक्वल टू A/2। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आपका, ये वाला भी ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यू डायरेक्टली सॉल्व बाय अप्लाइंग दिस रिलेशन। नाउ वी गेट R1 इज इक्वल टू A/2। ठीक है, अब अगर आप एक फेस लेते हैं, जैसे हम PQ फेस ले लेते हैं, तो PQ फेस में क्या हो रहा है, अगर हम PQ फेस ले लेते हैं तो PQ फेस में इधर तो इस साइड तो एयर है, ठीक है, और अंदर जो है वो प्रिज्म मटेरियल है। ठीक है, तो लेट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो 1 ही होता है, और जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन म्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखे म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आई बाय साइन R1। साइन आई मतलब इंसिडेंट एंगल जो PQ फेस था, PQ फेस पर जो इंसिडेंट एंगल था वो, और R1 क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल PQ फेस पर, तो साइन आई डिवाइड बाय साइन R1। तो यहाँ पर साइन आई की वैल्यू अपने पास है, ये रही, यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर दें, और R1 की वैल्यू कितनी है, A/2, तो यहाँ पर A/2 पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ इसमें एक कंडीशन है कि इफ़ द प्रिज्म इज अ थिन, ओके, थिन प्रिज्म अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो साइन आई होगा वो आई के बराबर हो जाएगा, जो हमने पहले भी यूज़ करा है, ये टिक्नोमेट्री कॉन्सेप्ट कि इफ़ आई इज़ वेरी स्मॉल एंड इफ़ R1 इज़ वेरी स्मॉल, जो साइन आई है उसकी वैल्यू आई के बराबर हो जाएगी, और साइन R1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R1 के। ठीक है, ये आपको अगर इसमें टिक्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो मैंने ऑलरेडी पोस्टेड अ लेक्चर ऑन दीज टिक्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आई एक्सप्लेन दिस इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो। ओके, तो अगर ये बहुत स्मॉल एंगल होता है तो साइन आई जो होता है वो, या जो साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर ही हो जाता है, तो यहाँ पे साइन आई के बराबर हो जाएगा, और साइन R1 किसके बराबर हो जाएगा, R1 के। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस रिलेशन, दिस रिलेशन इज डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और अगर आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इफ़ यू हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है प्रिज्म का और प्रिज्म एंगल पता है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो कहता है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसमें से ये जो सारे ही टॉपिक है, ऑल दिस टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द NTSC और ओलंपियाड एग्जामिनेशन। ओके, बट फॉर ओनली CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन, CBSE बोर्ड में ओनली आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लास प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, ओनली मोस्टली theoretical questions comes in a board examination, but for the competition examination this topic is very important. Okay, thank you.